اور ہم آگے پنجاب کا لین بھی کاٹنے کا وہ کریں گے، کیونکہ یہاں سے بات پانی کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ڈیم کس کا ہے؟ ہمارا ثوابی کا ہے۔ ایوب خان نے، جنرل ایوب خان نے جب یہ ڈیم بنا رہا تھا تو اسی ثوابی جو سارے پاکستان کو روشنی دیتا ہے، سارے پاکستان کو، کراچی کو روشنیوں کا شہر ہے تو میری وجہ سے ہے، لاہور اگر روشنیوں کا شہر ہے تو میری وجہ سے ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے بہت بہت شکریہ، آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میڈیا جو عمران خان دھرنے میں آپ آ چکے ہیں وہاں سے آپ ہمارے جو ثوابی جو دھرنا ہے اس میں ہمارے ساتھ یہ میڈیا ٹیم آئی ہے، وہ بھی مطلب وہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ دھرنے میں بیٹھ کے، عمران خان کی رہائی کے دھرنے میں بیٹھ کے لاہور سے آئے ہیں، ثوابی دھرنے میں ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کے آئے اور میڈیا ٹیم بھی وہاں سے لے کے آئے ہیں، مطلب ثوابی کے لیے، ثوابی کے لوگوں کے لیے کہ ان کا آواز دنیا کو پہنچے۔ سر آپ بہت بڑا قافلہ ثوابی سے لے کر یہاں پہ پہنچے ہیں، تو کیا تمام پارٹیز اسی طرح قافلے لے کر قافلہ در قافلہ یہاں پہ پہنچ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ثوابی کے یہ جو حقوق کا جنگ ہے، یہ اس طرح جنگ نہیں ہے۔ ثوابی جو سارے پاکستان کو روشنی دیتا ہے، سارے پاکستان کو، کراچی کو روشنیوں کا شہر ہے تو میری وجہ سے ہے، لاہور اگر روشنیوں کا شہر ہے تو میری وجہ سے ہے، کوئٹہ میں سارے دیہات میں جو روشنیاں جلتی ہیں یہ ثوابی نے سارے پاکستان کو روشن کیا ہے۔ لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے، یہ اس کے نیچے جو اندھیرا ہے یہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہمیں اپنا حق انشاءاللہ ساڈا حق اتنے رکھ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں بجلی فری دی جائے گی، کیونکہ یہ ثوابیوں کا حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا پرامن احتجاج ہے، یہ سار پارٹیوں کا احتجاج ہے، یہ ثوابی والوں کا احتجاج ہے۔ یہ انہوں نے اپنے زمینیں دیے ہیں، اپنے گھروں کو انہیں اجاڑ دیا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ تورپیڑا ڈیم کو دیکھیں تو اس میں ایک مسجد، کتنے مسجد نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اس قربانی کی بنا پر ہمارا حق بنتا ہے، جن کو رائلٹی ہمارے لیے رائلٹی ہے، یہ جو حق ہو اس کو مل جانا چاہیے، جہاں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اگر بلوچستان میں گیس کا مطلب تو ان کو حق بھی ملنا چاہیے، اگر پیٹرول جہاں نکلتا ہے تو اس گاؤں کو حق ملنا چاہیے۔ جب ہمارے ثوابی سے تمباکو اور جو سب سے بڑا جو ٹوبیکو سے یہ جو ٹیکس لگتا ہے اربوں، یہ جو امریکہ کے بعد سب سے بڑا مارکیٹ ہے سارے پاکستان میں، ایشیا میں تمباکو کا سب سے بڑا کاروبار ایشیا میں ثوابی میں ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایوب بابا نے یہ ہمارے دو کام کیے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ایک تورپیڑا ڈیم اور ایک اسلام آباد دارالخلافہ بنایا۔ لیکن بابا نے چین کو، اس وقت ہمارے پاس اتنی بجلی تھی کہ بجلی ہم چین کو دیتے تھے، ایران کو ہم بجلی دیتے تھے، اتنی بجلی تھی۔ ہاں تو اتنی بجلی تھی۔ ابھی ثوابی کے اپنے لوگ، گھر کے لوگ، جہاں مطلب روشنی جلتا نہیں ہے اس پر ٹیکسز لگتے، اس پر لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ توہین اور قانون میں بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے ظالمانہ کارروائی، وہ ابدا جو کرپٹ لوگ ہیں اس میں اور جو سیاسی لوگ اس میں آنے لگے تو انہوں نے اپنے وسائل کے لیے استعمال کیا، تو انشاءاللہ تعالی ثوابی کے لوگ، ساری پارٹیوں کے لوگ اکٹھے کھڑے ہیں۔ یہ ثوابی کے وجود کا معاملہ ہے، ثوابی کی روشنی کا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ حق لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بجلی مفت کروانے جا رہے ہیں یا لوڈ شیڈنگ ختم کروانے جا رہے ہیں؟ یہ دو مطالبے۔ مفت بجلی نہیں جی، پیسوں والا بجلی نہیں مانگتے ہیں، مفت جیسا کشمیر کو ملا ہم کو بھی ایسا ملنا چاہیے۔ پانی کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ڈیم کس کا ہے؟ ہمارا ثوابی کا ہے۔ ایوب خان نے، جنرل ایوب خان نے جب یہ ڈیم بنا رہا تھا تو اسی وقت اس نے بولا تحصیل، اس ٹائم ثوابی تحصیل کو بجلی مفت ملے گا، اور جو گھر ان لوگوں نے اجاڑ دیا بولتے اس کو پورا حق ملے گا۔ نہیں ملا ہم کو حق۔ یہ بجلی ہمارا ہے، یہ پنجاب کا بجلی نہیں ہے، یہ حکومت کا بجلی نہیں ہے، یہ ہمارا ثوابی کا بجلی ہے۔ بزرگوں اگر آپ کو بجلی مفت نہیں مل پاتی تو آپ کیا کریں گے؟ احتجاج رہے گا، جان کا قربانی دے گا، احتجاج کا قربانی دے گا، احتجاج کی قسم اپنے جان کا قربانی دے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ انشاءاللہ جو مشران فیصلہ کریں گے، اوپر جو مشران اور جو اپنے جو احتجاج میں جو لوگ ہیں ان سے انشاءاللہ مشاورت سے ایک کام کریں گے، کیونکہ اپنا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ قوم کا مسئلہ ہے۔ جب قوم فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی وہ پھر اپنا مطلب وہ اپنے قربانیوں کو بھی پیش کریں گے، اور انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ ہم نے 120 گاؤں اجاڑ دیے،
कितने लोगों को बेघर किया, अभी भी मुतासिरीन मौजूद है, कितने को अभी अपना बाद में मासेरा में और सवाबी में इधर उधर लोग हो रहे, ये उनकी अपनी जमीनें थी, अपनी जायदाद था, अपनी गाँव थी, तो चला गया, डैम में चला गया, उनको हक भी, वो हक भी नहीं मिला। अभी इंशाअल्लाह ताला ये जो हक है इंशाअल्लाह ताला ये आइन और कानून के मुताबिक है और रॉयल्टी है और फ्री बिजली इंशाअल्लाह इनको मिलेगी। ये लोड शेडिंग सवाल ही पैदा नहीं होता सवाबी पर लोड शेडिंग को, क्योंकि हम बिजली तो मैं पैदा करता हूँ। जब सवाबी के लोग बिजली के पैदा कर सारे पाकिस्तान को रोशनी देता है तो उस पर अंधेरा होगा, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है जिस पर अंधेरा होगा? तो इंशाअल्लाह ताला वो चिराग वाला सिस्टम नहीं चलेगा, चिराग तले अंधेरा सिस्टम नहीं चलेगा। अभी जब जहाँ बल्ब ये जिस तरह ये बल्ब जलते हैं तो सारे माहौल को रोशनी देता है, लेकिन जब वो खुद सवाबी जब रोशनी खुद देता है तो उस पर भी रोशनी होनी चाहिए। अगर मेरा बच चुमुंग तक तस्के नशो अगयार दे पकिलाम भी दासिन का बासिन शिपदे और लगवाने डॉक्टर साहब अगर चिराग तले से अंधेरा खत्म नहीं होगा तो आप चिराग बंद करेंगे या तोड़ देंगे? नहीं, चिराग जलती रहेगी, लेकिन जो मेरी रोशनी है इंशाल्लाह मैं अपने रोशनी को इंशाल्लाह ताला चिराग तले अंधेरा वो चिराग का मामला है। अभी ये जो रोशनी है ये रोशनी हर जगह को रोशन करेगा। जब सवाबी से रोशनी निकले, पहली सवाबी से रोशनी निकलेगी, जब इंशाल्लाह ताला ये अंधेरा यहाँ नहीं होगा, इंशाल्लाह ये चिराग वाला मामला नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ताला चिराग तले अंधेरा नहीं रहेगा। क्या समझते हैं बिजली ये पूरे पाकिस्तान का मसला है या आपका सिर्फ सवाबी का मसला है? ये पाकिस्तान का मसला है, लेकिन सवाबी जो तो बिजली तो हम पैदा करते हैं ना। जब मैंने कुर्बानियां दी तो मैंने कुर्बानियों का फायदा क्या है? जब मैंने जमीनें दी हैं, मैंने गांव दिए हैं, मेरे बच्चे बेघर हो गए, हमारे जो सवाबी के लोग इधर उधर हो गए, ये किस लिए? कि एक वक्त आएगा हमारे नस्ल के लिए रोशनी होगी, इसका मुस्तकबिल होगा, तो इसके लिए दिए ना। इस तरह तो नहीं है कि किसी ने अयूब बाबा ने तो इस तरह इनके साथ लास्टिक किया था कि इसको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री बिजली तो अभी फ्री मिल रही है, नहीं मिले तो जुल्म है ना। जब नहीं मिलेगी तो ये वजह क्या है? एहतिजाज क्यों है? एहतिजाज अगर मिलती तो एहतिजाज होता, ये अगर मिलती तो लोड शेडिंग अभी सवाबी में जिस तरह पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रहा है तो पाकिस्तान में भी लोड शेडिंग जिस तरह पाकिस्तान में लोड शेडिंग होता है। जब मेरे पास जब कुआं अपने घर में मौजूद हो तो दूसरे घर से कोई पानी लेके जाता है? हाँ, नहीं जाता। वो अपने घर में उनके पास पानी होता है, तो इसी वजह से अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, ये आज का जो शटर डाउन हड़ताल है ये एहतजाज है या सिर्फ जलसा है? ये आज वो जो एहतिजाज है जलसा, एहतिजाजी जलसा है या फिर ये दोनों है, ये धरना है? ये एहतिजाजी जलसा है। फिर मैंने बताया मैं इसको हम तो अभी तो हमारा ये नहीं है, मैं तो मतलब मैं तो लीडर नहीं, मैं तो सवाबी का एक छोटा सा मतलब एक वो छोटा सा वर्कर नहीं, एक छोटा सा बाशिंदा छोटे सवाबी वालों का बच्चा हूँ। मैं इसके लिए इंशाल्लाह आइंदा नस्लों के लिए मैं इंशाल्लाह कुर्बानी देता रहूंगा अपने बच्चे को इंशाल्लाह ताला। और पार्टियों का मसला भी नहीं है, ये सुन लो, ये पार्टियों का मसला नहीं है, ये हमारे जिंदगी और मौत का मसला है। ये हमारे लिए वो जो अयूब बाबा ने जो काम किया है, वो जो लास्टिक किया है, वो हमारे साथ इंशाल्लाह ताला अदालतों में जाएंगे, एहतिजाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं सवाबी का बाशिंदा हूँ, जलबी गाँव से आया, हाजी मेंबर एक्शन कमेटी मेंबर हाजी मोहम्मद कुरैश खान का भतीजा हूँ। सर मेरा नाम वकील खान एडवोकेट है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, लेकिन मुझे अपना ज़िला जो है अपने हुकूक पार्टी से ज़्यादा महबूब है। हमारे आबा व अजदाद ने हमारे 300 घर इस पे तबाह हुए हैं, हमारे 300 घर बेघर हुए हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हमारा ज़िला सिमुतूर का शिकार हुआ है। आज हमारे घरों में पानी उबर रहा है, हमारे ज़मीनें पस्त नहीं कर रहा है। इस वजह से हम मजबूर रहे, हम जलसा भी कर रहे, एहतिजाज भी कर रहे, हम सरों पे कफन डाल करके बाद में एहतिजाज करेंगे। अगर आपका ये मसला हल नहीं हो पाता तो अगला लाए अमल आपका क्या होगा? हमें लाए अमल हमारा बिलों से इनकार भी हो सकता है, सब कुछ के लिए हम तैयार है। जी नाजरीन, इनका कहना है कि सिविल नाफरमानी हम करने जा रहे हैं, बिलों से इनकार करेंगे। आइए सर, और आप क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे धरना देने जा रहे हैं या मुश्तरका पार्टी की जो लाए अमल होगा वो? हमारे एक्शन कमेटी है, सलीम खान एडवोकेट है और दीगर और अफराद है, वो जो फैसला करेंगे हमें जान से ज्यादा वो
बंदे महबूब है, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा इंशाअल्लाह। सर आज आप एहतजाज के लिए निकले अपने हकूक़ के लिए, क्या इससे पहले आपको यही हकूक़ बिजली फ्री बिल माफ़ किए जाए, क्या इससे पहले ये ख्याल नहीं आया? सालों के साल गुजर गए, हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे थे। हमारे लोगों ने पार्लियामेंट में ये बात उठाई है, सेनेट में भी बात उठाई है, हमने कई बार एहतजाज, लेकिन हमें दीवार से लगा दिया गया, हम मजबूर हो गए। हमारे मीटर काट रहे हैं, हमें लोड शेडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे, इस वजह से हमें मजबूर हो रहे। हम आइंदा नस्लों के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हर किस्म कुर्बानी देने के लिए तैयार है। रहमानिर्रहीम या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग को तो ये कि हमारा बिजली बनता है पानी से, और ये हम पे फ्यूल मतलब पेट्रोल का बिल में ये डालते रहते हैं, तो पेट्रोल पे बिजली हमारा बनता ही नहीं है, तो हम पेट्रोल का बिल क्यों दें? दूसरा लहबत अमली तो आखिरी हम यहाँ से देंगे। अगर ये हमारी बात मानता है और यूनिट को सस्ता करता है और फ्यूल हटाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो हमारा प्रोग्राम धरने का भी है, और हम आगे पंजाब का लाइन भी काटने का वो करेंगे, क्योंकि यहाँ से बात बने। नहीं पंजाब का लाइन क्यों काटेंगे? जहाँ बिजली बनता हो तो बटन भी उधर ही होना चाहिए ना। बिजली यहाँ बन रही है, बटन वहाँ है। आप बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप कहें हम सब पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तानियों का हक बनते है कि सबको पूरा हक मिले अपने हिसाब से। जैसा कश्मीर ने अपना हक चीन के ले लिया, तो हमें सवाबी वालों को भी चाहिए कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, और घर से हर बंदे को चाहिए कि निकले और अपने लिए निकले। और इस बिलों में हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे। अगर वो रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर मजबूरन हमने इक़दाम उठाने होंगे, करना होगा। नाज़रीन गिरामी, ये शहरी ऐसे ही परेशान है जैसे सिंध बलोचिस्तान पंजाब के लोग परेशान हैं। हर तरफ बिजली की लोड शेडिंग, आए दिन बिलों में इजाफा, बिल बढ़ते जा रहे हैं, बिजली कम होती जा रही है, समझ नहीं आती ये बिजली जा कहाँ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम तरबेला डैम सवाबी में मौजूद है। आज सवाबी के लोग सड़कों पे मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, शटर डाउन हड़ताल है, कारोबार बंद किए गए, लोग बच्चे बूढ़े आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के वसूख से कि निकल चुके हैं। एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या रोशनी डालना चाहेंगे। ये तकरीबन 2-3 महीनों से ये एहतजाज जा, और हमारा एहतजाज जो ये रिकॉर्ड हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारे 2-3 डिमांड्स हैं। पहला डिमांड ये है कि हमें जिस तरह कश्मीर को 3 रुपये पे यूनिट दिया गया, तो हमें 3 रुपये पे यूनिट दी जाए, और इसके अलावा हमारे जो कमर्शियल यूनिट है वो हमें 12 रुपये पे दी जाए, क्योंकि ये डैम जो है ये डैम हमारा है, और ये पूरे पाकिस्तान का डैम है, और इंशाअल्लाह स्वाबी का सबसे पहले अगर हुकूक है तो वो स्वाबी के लोग के हुकूक है। और आज आपने देख लिया कि हमारे तकरीबन टोपी तहसील के 40-45 हज़ार ज़मीन जो है वो हमारे इस पानी के अंदर आ गया। तो 40-45 हज़ार एकड़ या कनाल, एकड़ और ये काफ़ी ज़मीन है। तो इस वजह से आपने इससे पहले भी काफ़ी लोग हमें कह रहे थे कि आप इससे पहले क्यों नहीं निकल रहे थे। ये प्लान हमारा बहुत पहले था, लेकिन अभी इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया कि 300 यूनिट अगर 400 यूनिट कोई खर्च करता है तो उस पर 70 से 75 पर यूनिट उस पर आता है। तो हमारे गरीब लोग अगर जिसकी सैलरी 30,000-28,000 रुपये हो और उस पर घर का बिल 70,000 आ रहा हो तो वो किधर से पे करेगा? सर 10-10 हज़ार भी लोगों की सैलरी है, किचन चलाना मुश्किल है, तो लाख रुपया भी लोगों को बिल आ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो खुद बहुत ये लोगों को खुद बहुत दहशतगर्द बना रहे हैं। ये कारखाने बंद कर रहे हैं, अभी आप देखें गदून अमादई तकरीबन आप देखें यहाँ पे मैं खुद जाता था, यहाँ पे मैंने खुद जॉब की है, काफ़ी लोग हज़ारों के लोग यहाँ पे काम कर आ रहे थे। आज सारी जो फैक्ट्रियाँ थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आज मुश्किल से 5 से 6 बड़े कारखाने ओपन होंगे जो वो एडजस्ट कर सके, अदरवाइज कोई कारखाना ओपन नहीं है। सब लोगों ने अपने बिजली के लाइन काट लिए क्योंकि हर कारखाने पे 1 करोड़ का बिल आता था। सर आप एहतजाज में पहुंचे हैं, यहाँ जलसे का बंदोबस्त किया है, रास्ते बंद है, क्या आपको केपी के गवर्नमेंट की वजह से कोई परेशानी दरपेश हुई? नहीं, अभी तक हमें केपी के गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी नहीं हो, बल्कि हमारे जो सूबे के बड़े हैं वज़ीर आला, उसने खुद कहा था कि इंशाल्लाह ये जंग जो है ये हमारे पूरे सूबे का जंग है, ये सबसे पहले सवाबी का जंग है। तो इंशाल्लाह उसने खुद ही हमें बता दिया कि हम वफाक को 2 रुपये पे पर यूनिट दे रहे, तो वफाक हमें क्यों 3 रुपये पर यूनिट नहीं दे रहा? अगर कश्मीर को हक मिल रहा है तो स्वाबी को भी अपना हक मिलेगा इंशाल्लाह। अगर दर ना हुआ,
कुछ भी हुआ तो हम इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार है। सर अभी हाल ही में 4 पे बिजली महंगी हो चुकी है, तो क्या आइंदा भी महंगी होने जा रही है? तो आप अपना हक लेकर रहेंगे या ज्यादा बिल बढ़ते जाएंगे तो आप देते जाएंगे? अभी देखिए, मजे की बात तो ये है कि हम कैसे अपने बिल देंगे। एक बंदे की सैलरी 10,000 हो, उस पर बिल 70,000 हो, तो वो एक महीने कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो 6 महीने कभी अपने बिल नहीं दे सकता। तो इसकी वजह से पूरे जगह पे अमन ख़त्म हो जाएगा, फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ तक कोई ना भी निकले तो आखिरी हल यही होगा कि हर बंदा पूरे पाकिस्तान, ये तो स्वाबी के लिए पूरे पाकिस्तान में रोड ब्लॉक करके हर चीज़ें ख़त्म कर देंगे।